Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Now we have discussing about the basic concepts of organic chemistry. So let's start the basic concept according to the types of polar reaction. The second is elimination reactions. The types of organic reactions in which two atoms and groups of atoms are removed from a molecules and the multiple bond is formed as elimination reactions. The most common types of elimination reactions is a beta eliminations. So let's discuss about the beta eliminations. The types of eliminations in which two atoms and a groups of atoms are removed from adjacent carbon of a molecules and form a multiple bond is known as 1,2 eliminations or beta eliminations. So the reaction is base in which oxygen partial negative charge, which is react with the hydrogen, which is partial positive charge. So the formations according to that kind of a reaction, formation of water. So the remaining product is the bond which is transferred, the carbon bond. So the formation is carbon double bond. And another types of reactions, which is bond transfer, the halide partial negative bond. So the bond is leaving from the substrate. So the reaction is base, which is react with the primary alkyl halide. So the formations of water, halide ions, and the alkenes of reactions. That kind of reaction, which is called beta eliminations of reaction, which is formations of water. So the classifications according to the eliminations of reactions on the basis of mechanisms, beta elimination reactions are classified into two types. First one is E2 mechanisms and the second one is E1 mechanisms. E2 mechanisms according to bimolecular elimination. It is one-step mechanism. In these reactions, before the formations of a product are the formations of product are transition state is formed in which two molecules, that is the alkyl halides and base, are involved. Due to this reasons, it is a bimolecular reactions. Bimolecular reactions means two productions of reactions. In this mechanisms, removal of protons from beta carbon and removal of leaving groups from alpha carbon take place simultaneously. Leaving groups and protons from beta carbons. So the removal of two systems, beta carbons and alpha carbon systems. So let's discuss about the mechanisms. Base, which is the similar reactions according to the beta elimination reactions, but यहाँ पे क्या formation हो रही है? Transition state की formation हो रही है. Base react कर रहा है किसके साथ? H plus ions के साथ. So let's discuss about the halide ions. यहाँ पे discuss किया गया है आपके पास. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सिस्टम आपके पास मौजूद है तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में स्लो स्टेप रिएक्शन हो रहा है. सो स्लो स्टेप रिएक्शन व्हिच इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शंस. हाइड्रोक्सिल आपके पास जो भी आयंस मौजूद है बेस व्हिच इज अट्रैक्ट विद द H plus partial positive charge, so the formation of that kind of a reactions in which carbon is a partial positive charge and also the carbon is a partial positive charge. अट्रैक्शन क्या हो रही है? बॉन्ड चेंज ट्रांसफर हो रहा है, हाइलाइट पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो द लिविंग ग्रुप, अभी इसमें से सिस्टम में से लिविंग ग्रुप कुछ भी नहीं निकला है, अटैचमेंट हुई है और लिविंग ग्रुप स्टिल मौजूद है सब्सटेंस में. सो दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज अ ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन. फास्ट स्टेप रिएक्शन कब बनेगा? जब वाटर सिस्टम बनाएगा अपना, यानी वाटर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ, यानी बेस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके वाटर जनरेट करेंगे, हैलाइड आयंस बनेगा एंड द फॉर्मेशंस ऑफ अल्कीन्स. अकॉर्डिंग टू E2 काइनेमेटिक रिएक्शंस मींस द काइनेटिक्स रिएक्शंस. क्या रिएक्शन बनेगा? रेट which is directly proportional to the R bond. X means halide ions and the concentrations of a base. So it means the rate is equal to K. K is a proportionality constant. So the concentrations of R bond halide and the concentrations of a base. E2 mechanisms की further another reactions हैं according to that kind of a mechanisms. इसके examples यहाँ पे दी गई हैं. The concerted E2 reactions take place in a single steps. We know that according to the single steps of reactions, a strong base abstract a protons on a carbon next to the leaving groups, and the leaving groups leaves the products in an alkenes. So the formation of alkene products. यही mechanisms को, इसी mechanism को further explain किया गया है that kind of a reactions. So let's discuss about the E2 eliminations of 3-bromopentane with the sodium ethoxide. यहाँ पे भी आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली किस तरीके से सोडियम इथोक्साइड्स फॉर्मेशन कर रहे हैं हमारे पास एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू 3-ब्रोमोपेंटेन की. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट काइंड ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे भी आपके पास हैलाइड आयंस अलग से सेपरेट आउट हो रहे हैं और बेस रिएक्शन कर रहा है. बेस क्या है? बेस रिएक्शन कर रहा है अकॉर्डिंग टू सोडियम आयंस के साथ.
So that is the single step of reaction. The order of reactivity of alkyl halides in E2 reactions in 3 degree is the valuable comparatively the 2 degree and a 1 degree reaction. So let's discuss about the even mechanism. Even stands for the unimolecular elimination. It is the two-step mechanism. In first step, the slow ionizations of alkyl halide take place in carbocationous form. In second step, rapidly the removal of beta hydrogen take place in alkene is formed. Since in rate determining step, only the one molecules, that is the alkyl halide, is involved, therefore it is the unimolecular reaction. So आपके पास रिएक्शन क्या जनरेट हो रहा है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जनरेट हो रहा है. फर्स्ट स्टेप इसका देखते हैं फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोकेटाइंस. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सिस्टम मौजूद है, हैलाइड आयंस है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैटाइंस मौजूद हैं. सो द फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप रिएक्शन इज स्लो स्टेप रिएक्शंस. इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है, स्लो स्टेप रिएक्शन बन रहा है, तो 3 degree carbocations and halide ions and leaving groups from the system में से अलग separate out हो रहे हैं. So first step is the formation of carbocation reactions. Second step is the removal of beta hydrogen. Second step क्या है, system में से beta hydrogen remove हो रहे हैं. Beta hydrogen यानी base which is react with the H plus ions to the formations of a water and the product is a alkene reactions. According to E1, kinematic reactions means the kinetics reactions rate which is directly proportional to the टर्जरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सो इट्स मींस R3 कार्बन बॉन्ड हैलाइड रेट इज इक्वल टू द मींस द प्रोपोर्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, K कांस्टेंट आएगा, तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशंस ऑफ R3 कार्बन बॉन्ड हैलाइड आयंस एंड द कंसंट्रेशंस ऑफ अ बेस. These reactions are basically even mechanisms of reaction. So let's discuss about the even mechanisms. According to that kind of a reaction, the even reactions requires the ionizations to the carbocations intermediates like the SN1. So it is follow the same order of the reactivity according to the SN1 of reactions, 3 degree, 2 degree, and a 1 degree. A base usually weak deprotonates the carbocations to give an alkenes. Step 1, according to that kind of a reaction, which is called the formations of carbocations reactions, unimolecular ionizations to gives a carbocations rate limiting step, so the formations of halide ions, which is the partial negative charge. Step number 2, deprotonations by a weak base. Often the solvents gives the alkenes. So that kind of a reaction which is called the fast reactions, in which आपके पास जो भी base of product है which is react with the halide ions, hydrogen ions, and the bond which is transferred to the carbon partial positive, so the formations of जो भी प्रोडक्ट बन रही है अकॉर्डिंग टू दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस एंड फॉर्मेशंस ऑफ अल्कीन. डिफरेंसेस बिटवीन द एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिस तरीके से हमने डिफरेंसेस SN2 मैकेनिज्म्स एंड SN1 मैकेनिज्म्स का डिस्कस किया था, इसी के अकॉर्डिंगली आपके पास डिफरेंसेस मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू E1 एंड द E2 मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस. प्रोमोटिंग फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू द बेस, सॉल्वेंट्स, सबस्ट्रेट्स एंड द लीविंग ग्रुप्स. ये कौन से फैक्टर्स होते हैं? ये तमाम फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस में मौजूद होते हैं. जैसे कि तमाम फैक्टर्स हैं, इन्हीं फैक्टर्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस में. सो द बेस, वीक बेस वर्क, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू E2 mechanism. Solvents is good ionizing solvents is a wide variety of solvents, large variety of solvents यहाँ यूज होंगे. Substrates as a 3 degree is larger than the 2 degree. Comparatively, the E2 mechanisms is a 3 degree greater than 2 degree and more greater than the 1 degree. Leaving groups, good one required. Comparatively, the E2 reactions of mechanism is good one is also required. Characteristics, kinetics, reactions, orientations of reaction, stereochemistry of reactions, and the rearrangements of reactions. So let's start. The first one is the kinetics. First order, according to the rate, is proportionality. Concentrations of R bond X. Comparatively, the second order is equal to the proportionality के accordingly आपके पास के constant मौजूद है in the concentrations of R bond X and the reactions of halide ions. यानी means आपके पास क्या दिया हुआ है, base दिया हुआ है. Orientations, most substituents are alkene according to the E2 mechanisms. Stereochemistry, no special geometry. Comparatively, the E2 mechanisms of reaction is a coplanar transition states are required. Rearrangements is a common and the E2 mechanisms according to the impossibles of reactions.
So these are the differences between the elimination reactions of E1 mechanisms and the E2 mechanisms. So let's start about the reactions, problem solving strategy for substitutions and elimination reactions. अब हमने अपना elimination reactions and substitution reactions completely discuss कर लिया है, तो इसी से related इसके basic journal equations हैं जो SN1, SN2 and E1 and E2 mechanisms of reactions को categorize करें. So first one reactions are halide ions है, alkyl मौजूद है, halides आपके पास ions मौजूद हैं. So the reactions is a reversibles. यानी मीन्स दैट ये आपके पास इक्विलिब्रियम्स ऑफ रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन जनरेट करेगा स्लो रिएक्शंस को, तो हैलाइड आयंस आपके पास अलग जनरेट होंगे, मींस लीविंग ग्रुप्स, और अल्काइल ग्रुप्स इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स के साथ अटैक कर रहे हैं, तो अल्काइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्शन बना रहे हैं. दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज अ फास्ट रिएक्शन. Comparatively, SN2 mechanisms of reactions, nucleophiles which react with the carbon, and carbon के साथ जो बॉन्ड अटैच है which gives the halide ions which is the partial negative charge, जो एक लीविंग ग्रुप्स बनाएगा सबस्ट्रेट्स में से निकलकर, और न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैच होकर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा. So that kind of a reaction is a product and the leaving groups of a substrate according to the SN2 mechanisms. Even mechanisms आपके पास same reactions है. Reaction क्या हो रहा है? Halide ions and प्रोडक्ट के दरमियान हो रहा है, halide ions and the formation of product जो भी मौजूद है according to the स्लो रिएक्शन. स्लो रिएक्शन क्या और इक्विलिब्रियम जनरेट कर रहा है, तो लीविंग ग्रुप्स मींस द हैलाइड आयंस व्हिच इज द पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज सिस्टम के अंदर से, मींस दैट द सबस्ट्रेट के अंदर से अलग जनरेट हो रहे हैं. सो द फॉर्मेशंस ऑफ अ प्रोडक्ट कैटायंस. बेस व्हिच इज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पे भी वो रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द फास्ट रिएक्शन. सो द फॉर्मेशंस ऑफ अल्कीन एंड बेस बॉन्ड हाइड्रोजन्स मीन द वाटर फॉर्मेशन. यहाँ पे क्या हो रही है? वाटर की फॉर्मेशन हो रही है. अब यही वाटर की फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन H+ आयंस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बन अपना बॉन्ड ट्रांसफर कर रहा है विच इज द फॉर्मेशंस ऑफ अल्कीन, एंड हैलाइड आयन अपने बॉन्ड ट्रांसफर करेगा लोन पेयर्स के साथ, सो द फॉर्मेशंस ऑफ लीविंग ग्रुप्स ऑफ हैलाइड आयंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. सो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म्स, जितने भी हमने इनके जर्नल मैकेनिज्म्स किए हैं अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, इन सब की एक जर्नल बेसिक इक्वेशंस है, और इन्हीं बेसिक इक्वेशंस को रखते हुए हम मजीद एग्जांपल्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ग्रुप्स चेंज करके. जैसे आर की जगह में कोई भी यहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप दे सकती हूँ, कोई भी अटैचमेंट्स ऑफ चेन ऑफ रिएक्शंस दे सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने सिस्टम को जनरेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1 mechanisms and the E2 mechanisms. Now the discuss about the addition reactions. ये आपके पास एक थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन है टाइप्स ऑफ पोलर रिएक्शंस की. The types of organic reactions in which two or more molecules are combined together and form a single product is known as a addition reactions. जो combine होके और single product की formation करेंगे उनको हम addition reaction कहेंगे. There are two types of reactions, means addition reactions according to the electrophilic addition reactions and the nucleophilic addition reactions. So let's discuss about the electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reactions are the characteristic reactions of alkenes. In these types of reactions, of pi bond is broken and two new sigma bond is formed. In alkenes, pi electronic cloud is present on the above and below the plane. Therefore, the electrons deficient, especially electrophiles, can attack on it and form the addition product. According to alkene, with the sigma bond and a pi bond जो है break out हो रहा है, and the reaction with the positive and the negative electrophiles, nucleophiles and the electrophiles के साथ reaction करके आपके पास product की formation करेगा. According to the journal mechanism, step 1 for the formations of electrophile, and the second step is the attack of electrophile and the attack of nucleophile. Journal mechanism में क्या हो रहा है? Formation कर रहे हैं electrophiles की, formations of electrophiles. So हम डिस्कस करते हैं A bond भी आपके पास कोई भी मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो फॉर्मेशन किसकी हो रही है? इलेक्ट्रोफाइल्स की, एंड द न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज द पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अब इसी रिएक्शन को यानी फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो हमने जनरेट किए हैं इनको डिस्कस करेंगे. अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट अटैक करेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल पे एंड सेकंड अटैक करेंगे न्यूक्लियोफाइल पे. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स. सिस्टम क्या दिया हुआ है? अल्कीन सिस्टम दिया हुआ है. उसी अल्कीन सिस्टम पे हम मजीद काम करेंगे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ क्या है? अल्कीन है.
अल्कीन दिया हुआ है, फर्स्ट अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, तो किस तरीके से फॉर्मेशन होगी, सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड इज अ ब्रोकन, सो द फॉर्मेशंस ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी आपके पास बॉन्ड जो है ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल व्हिच इज अटैक फॉर द अल्कीनोफाइल्स, so the attack of electrophile reactions. And the third step reactions is attack of nucleophile, जो आपके पास प्रोडक्ट जनरेट होगी उसी प्रोडक्ट के साथ हम न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराएंगे. न्यूक्लियोफाइल क्या मौजूद है, इज अ B is a partial negative charge. So the attachments of a B partial negative charge रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, जो आपके पास अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल से प्रोडक्ट जनरेट हुई है उसके साथ रिएक्शन करेगा एंड द फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट. So that kind of reactions are basically the general mechanisms of reaction according to the formations of electrophiles, जिससे generate होंगे attack of electrophiles and the attack of nucleophiles. Solve problem देखते हैं इसकी. Write the stepwise reaction mechanisms of addition of bromine means the brominations in ethane. So the strategy and answer is reaction according to the bromine. Reaction दिया हुआ है आपके पास अल्कीन का which is react with the bromine, so the formations of 1,2-dibromoethane और dibromoethene. ठीक है, तो आपके पास 1,2-डाइब्रोमोइथेन और डाइब्रोमोइथेन आपके पास किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है इसको डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म. फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स. फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, Br2 रिएक्शन दिया हुआ है, तो ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन दिया हुआ है, सो दो फॉर्मेशन करेंगे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. अब अल्कीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशंस ऑफ क्या है, अल्कीन दी हुई है, अल्कीन which is react with the electrophile partial positive charge, so the formations of that kind of a product. अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो भी प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है वो रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, so the formations of 1,2-डाइब्रोमोइथेन. ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गई, 1,2-डाइब्रोमोइथेन जनरेट हो गई, या आपके पास अकॉर्डिंग टू द रिएक्शंस ऑफ ब्रोमीन बना. इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल को देखते हैं. राइट द स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म्स ऑफ एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रोपेन. सो द स्ट्रैटेजी एंड आंसर. रिएक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, डाइब्रोमो प्रोपेन दिया हुआ है, मींस यहाँ पे प्रोपेन का रिएक्शन दिया हुआ है, डबल बॉन्ड है, जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, सो द फॉर्मेशंस ऑफ 2-डाइब्रोमो प्रोपेन. 1-2 आपके पास यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2-डाइब्रोमोप्रोपेन. ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन आएगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू वन काइंड ऑफ रिएक्शन, यानी एक दिया हुआ है ब्रोमाइड, ब्रोमोप्रोपेन है. ठीक है, यहाँ पे डाई को हटा दीजिएगा, ब्रोमोप्रोपेन आएगा. अच्छा जी, मैकेनिज्म हम देखते हैं. स्टेप 1 इज द फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड द न्यूक्लियोफाइल इज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो भी आपके पास सिस्टम प्रोपीन था, जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसको अटैक करेगा इसके बॉन्ड के साथ, सो द फॉर्मेशन किसकी करेगा, यहाँ पे बॉन्ड अटैक होगा और फॉर्मेशन आपके पास किसकी जनरेट होगी, हाइड्रोजन आयंस की. ठीक है, रिएक्शन में क्या जनरेट होंगे, हाइड्रोजन आयंस जनरेट होंगे. तो यहाँ आपके पास सेकंड स्टेप, जो उसका थर्ड स्टेप बनेगा, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, जो भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, सो द रिएक्शन इज CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 फॉर्मेशंस ऑफ ब्रोमीन. ठीक है, तो ये स्टेप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ब्रोमोप्रोपेन जनरेट हो रहा है. यहाँ पर आपके पास 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो ये रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. यहाँ से पता चला हमें सिस्टम अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन. सेकेंड स्टेप डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक डिस्कस किया था, अब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड्स. इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स बॉन्ड इज अ पोलर ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ carbonyl oxygen. As a result of this, carbonyl carbon becomes is electropositive and good target for electron-rich chemical species of nucleophiles. Hence, the addition reactions are take place. So let's start. The first one is the carbonyl group. Carbonyl carbon मौजूद है, carbonyl oxygen मौजूद है, carbonyl bond मौजूद है, which is react for the reversibles of reactions. आपके पास equilibrium reaction generate हो रहा है, तो carbocations and the oxygens यानी carbonyl oxygens which is react with the partial negative charge. According to the double bond of reaction, क्योंकि reaction generate हो रहा है reversibles, तो carbocations and oxygen partial negative ions भी generate हो रहा है.
जर्नल मैकेनिज्म देखते हैं इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंगली कि आपके पास फॉर्मेशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल ए बॉन्ड बी, आपके पास कोई भी सिस्टम दिया हुआ है जो जनरेट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल को। सो स्टेप नंबर 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट रिएक्शन करेंगे हम न्यूक्लियोफाइल के साथ। आपके पास रिएक्शन क्या दिया हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप दिए हुए हैं। कार्बोनाइल ग्रुप में partial positive carbon atoms and the oxygen is a partial negative charge. ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ट्रांसफर करेगा, सो जनरेट करेगा ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और रिएक्शन करेगा ए प्लस यानी ए नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के साथ। सो द रिएक्शन ऑफ दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस। अब फर्दर यही रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन करेंगे विच इज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जो पार्शियल पॉजिटिव क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल जो ऑक्सीजन जो होगा पार्शियल नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा प्रोटॉन की। सो दिस इज द जर्नल मैकेनिज्म्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, attack of nucleophiles and the attack of electrophiles of reactions. इसकी एक सॉल्व प्रॉब्लम लिखते हैं। राइट द स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म्स ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इन फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसका, हाइड्रोजन साइनाइड का। सो द स्ट्रेटेजी एंड आंसर अकॉर्डिंग टू द दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस, फॉर्म एल्डिहाइड है आपके पास और रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। सो द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, फॉर्मेशन किसकी हो रही है, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो रही है। यानी H plus partial positive charge and a cyanide is a partial positive negative charge which is react with the formaldehyde. According to the mechanisms इसका देखेंगे तो formations of nucleophile is a first attack. यानी formation किसकी हो रही है, न्यूक्लियोफाइल की हो रही है। तो हाइड्रोजन साइनाइड is electrophiles and the nucleophiles. H plus ions is a partial positive charge means the electrophile. Cyanide is a partial negative charge means the nucleophile. स्टेप नंबर 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल को विच इज द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, रिएक्ट करेगा कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ। सो बॉन्ड क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन आपके पास पार्शियल नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद था, तो साइनाइड अटैक किसके साथ कर रहा है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव के साथ और अटैचमेंट करेगा साइनाइड आयंस की। यही प्रोडक्ट आपके पास फर्दर रिएक्ट करेगी इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ विच इज पार्शियल द पॉजिटिव चार्ज। सो द फॉर्मेशंस ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या जनरेट हो रहा है, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट जनरेट हो रही है अकॉर्डिंग टू दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस। सो दीज आर द रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ पोलर रिएक्शंस व्हिच आर डिस्कसिंग अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड द एडिशन रिएक्शंस। These three types of reactions are the basic reaction according to the basic concepts of organic chemistry. Thank you.